Hello aspirants, welcome to DICS. We were discussing the series of ethics simplified at the rate DICS. In this today we are going to continue with the topic of attitude, in which in the past video we had discussed what is the meaning, structure, content, function, everything about attitude, and now we shall move forward for the bifurcation of two types of attitudes which are important to study in our syllabus, right? Talking about moral attitude, what is moral attitude? Moral attitude क्या होता है, right? Attitude के बारे में हमने पढ़ा कि attitude is nothing but an individual's viewpoint, thought, or kind of what does he believe on, what is his viewpoint, what is his opinion on particular individual topic, that can be considered as attitude. So here moral attitude is nothing but attitude of an individual on moral issues. यहाँ पे when we talk about moral issues, right, moral issues like what? Yes, morality and ethics दोनों में एक अंतर है. Yes, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि moral issues always tend towards righteousness. किसी भी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का मंतव्य कि भाई what his contribution in the formation of ethics, yes, can be considered his moral attitude. So we can say that your contribution in the formation of ethics can be considered your moral attitude. Yes or no? Yes. Basically आपका क्या व्यू पॉइंट है, what do you think about what is right and what is wrong can be considered your moral attitude. Your viewpoint on what is right and what is wrong. यही शब्द हैं जो हमने यूज़ किए थे एथिक्स को डिफाइन करने में इन अवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन, राइट? बेसिकली मॉरल एटीट्यूड्स आर नथिंग बट एन इंडिविजुअल्स व्यू पॉइंट, थॉट ऑन व्हाट, ऑन मॉरल इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. दे ऑलवेज टेंड टूवर्ड्स व्हाट? राइटियसनेस. योर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एथिक्स. देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यस, अब मान लीजिए कोई भी समाज किस तरीके के, कोई भी सोसाइटी किस तरीके के मॉरल्स को फॉलो करता है, राइट, दैट बिकम्स एथिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी. सो इससे हमें ये पता चलता है कि मॉरल और एथिक्स के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है दैट एथिक्स टेंड टू चेंज विथ टाइम. वैसे उसी तरीके से मॉरल्स आर ऑलवेज ऑन द राइटियस साइड, वो जो आइडियल है जहाँ पे हमें पहुँचना है, राइट. तो आपका viewpoint on any such particular topic can be considered your moral attitude regarding that particular thing, right? So your viewpoint basically on what is right and what is wrong, it is obviously going to be important because you as a social animal are a part of the society and you would be the one who would be determining what? Nothing, or contributing towards what? The formation of ethics in the particular society in which you exist, right? That is why the discussion of these particular moral attitudes is very very important, right? इसके बाद यदि थोड़ा आगे बढ़े, yes, तो कौन कौन से types of moral attitudes can we discuss? सबसे पहले लेट मी राइट डाउन अ फ्यू वर्ड्स ओवर हियर और फिर हम उसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला गुडनेस. यस, गुडनेस इज नथिंग बट कैन यू डिफाइन गुडनेस? गुडनेस और गुड, बीइंग गुड और बैड इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव और उसका कोई सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है. yes, because it can differ from person to person, it can differ from society to society. yes, इस वजह से goodness को हम perfectly define नहीं कर सकते. yes, हिंदू
फिलोसॉफी में माना जाता है कि वेद व्यास का जो टेलिस्मन इज व्हाट, नथिंग बट अ मैसेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर और इंडिविजुअल। यस, तो उनका एक टेलिस्मन है जो हमें इस तरीके से बताता है कि अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम, राइट। इसका अर्थ है कि 18 पुराणों का काइंड ऑफ कंसाइज करके वेद व्यास जी ने ये निकाला अर्थ, यस, कि गुडनेस क्या है, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, कि यदि आप किसी की मदद करते हैं, यस, तो वो कैसा है, वो पुण्य समान है, वो गुड एक्ट है। और यदि आप किसी को हार्म करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसा है, वो पाप समान है, इट इज़ अ बैड एक्ट। यस, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, वेद व्यास टेलिस्मन। सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी धर्म की फिलॉसफी उठा के देख लीजिए, दे ऑलवेज डिफाइंड एक्ट्स ऑफ गुडनेस, राइट, ताकि लोगों को गुडनेस में अपना पर्सपेक्टिव ऐड करने का मौका ना मिले, राइट। दैट इज वाई जनरली रिलीजन्स, yes, over the societies become what, the guiding force to define goodness in our lives. Yes, so goodness is nothing but a moral attitude that you possess. Yes, ऐसे ही दूसरा यदि हम देखें, reverence, जिसको हम बोलते हैं रिस्पेक्ट, reverence और respect, this is a very important moral attitude that an individual should possess. Why? ये क्यों इतना important है? यस, देखिए, बेसिकली इफ़ यू सी कांतियन फिलोसॉफी में ये कांत ने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, यस, कि रेवरेंस या रिस्पेक्ट आपको हर एक ह्यूमन बीइंग को एज एन एंड ट्रीट करना है, एज एन एंड इन हिमसेल्फ, यस, एंड नॉट एज अ मीन्स। मतलब हमें किसी भी और व्यक्ति को, जब हम उतने मैच्योर हो जाएंगे कि हम दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से देखने लगेंगे, एज एन एंड इन देमसेल्व्स, बट नॉट एज व्हाट अ मीन्स, कोई साधन के जैसे नहीं, कोई और गोल अचीव करने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड बिकम अ मैच्योर सोसाइटी, राइट। तो इसी ये फिलॉसफी हमें दर्शाती है कि रेवरेंस या रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यस, मे इट बी टूवर्ड्स एनीथिंग, टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स को एग्जिस्टेंस, yes, towards human beings, towards each and every thing in our surrounding। तो इसी वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल एटीट्यूड है। इसी तरीके से नेक्स्ट मॉरल एटीट्यूड की यदि हम चर्चा करें, यस, यहाँ पे मैं 2 शब्द साथ में लिख रही हूँ, उसका एक कारण है लव एंड कंपैशन। देखिए, ये दोनों शब्दों को यदि हम समझते हैं, देखिए, लव एक ऐसी चीज़ है, प्यार, प्रेम, यस, जिसके आगे आपको एडजेक्टिव्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव। वाई? बिकॉज इनहेरेंटली इसे डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कंडीशनल इन नेचर। यस, तो ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? कंपैशन इज नथिंग बट व्हाट, करुणा, राइट, कि आप जिन लोगों को जानते हैं, यस, हु आर नोन टू यू, नोन पीपल, उनके प्रति आपको प्रेम का भावना हो सकती है, राइट। बट द पीपल हुम यू डू नॉट नो, यस, जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको ऐसे ही लोगों की सेवा करनी है, राइट। बट इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंपैशन, द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द अननोन, तो कभी भी आप बेस्ट सर्विस नहीं दे पाएंगे। यस, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। जैसे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना कि भगवान अपनी करुणा दृष्टि हम पे बनाए रखे, भले हमें डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड नहीं है, फिर भी क्या करें, वी आर अननोन टू हिम, बट लेट हिज ग्रेस बी ऑनर्ड अपॉन अस। तो दैट इज व्हाट, नथिंग बट लव एंड कंपैशन। तो क्या मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, इफ दिस इज लव, दिस बिकम्स कंपैशन। यस, क्योंकि ये किन लोगों के बीच में ये भावना होगी, नोन पीपल। यस, हम जो हमें पहचानते हैं उनके साथ तो हम बिल्कुल अच्छे से प्रेम भावना से पेश आ सकते हैं, बट द पीपल हु डू नॉट नो अस, हु आर अननोन टू अस, उनके प्रति अच्छा भाव रख के उन्हें सेवा देना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कंपैशन। यस, फिर इसी तरीके से मैं यदि यहाँ पे एक शब्द लिखूँ, भाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मदर वैल्यू, इसको बोलते हैं हम एम्पैथी, राइट। एम्पैथी, देखिए इसके ट्रांसलेशन में कई लोग सहानुभूति भी यूज़ करते हैं, राइट, पर इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन है समानुभूति। यस, देखिए सिंपैथी और एम्पैथी 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, यस, जो इंटरकनेक्टेड बिल्कुल है, बट सिंपैथी इज व्हाट, जब आपको किसी के प्रति दया भाव होता है, राइट, आप यू फील पिटी
फॉर whom कि भाई इनके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, राइट? तो आप उसके प्रति क्या है, यू आर सिंपथेटिक टूवर्ड्स दैट पर्सन. बट व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स प्लेस एंड देन यू परफॉर्म सम एक्शन टू इम्प्रूव हिज पोजिशन. उसको बोलते हैं हम एम्पैथी. यस, ये आया कहाँ से है भाई? इफ वी टॉक अबाउट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद इज व्हाट? Adi Shankaracharya's philosophy, which talks about the concept of तत्वमसी. तत्वमसी का अर्थ क्या होता है भाई? तत्वमसी इज नथिंग बट इट मस्ट बी यू ओनली, राइट? मतलब हम किसी और को, या अद्वैतवाद का फिलॉसफी क्या बोलता है कि हमें किसी और सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके से देखना है, जैसे वो हमारा ही परछाई हो. ही इज नथिंग बट अ शेडो ऑफ आवर ओन सेल्फ, राइट? तभी हम उनके साथ कैसा एकदम एप्ट व्यवहार कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट व्यवहार कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जिस तरीके से लाएंगे, अगर वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हू एवर वी आर सर्विंग, तभी हम उनके सारे प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन ला सकते हैं, राइट? तो क्या इसी डायग्राम में मैं यहाँ पे एम्पैथी लिख सकती हूँ, right? This is what the difference between these three feelings is. This can be considered the mother value. यदि empathy है, yes, तो बाकी की सारी जो वैल्यूज़ होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर, वो खुद ही फॉलो करती आएंगी. इस वजह से हम इसको क्या मदर वैल्यू बोला जाता है. yes, even we will study this in detail in our foundational civil service values, क्योंकि सबसे important foundational civil service value है ये, right? इसके बाद यदि yes, एक important और है moral attitude that needs to be discussed, faithfulness, या तो जिसके लिए हम word use करते हैं fidelity. What is faithfulness और fidelity and why is it important? देखिए, आज के समाज में, आज के सोसाइटी में, जहाँ पे faithfulness के कॉन्टेक्स्ट में there is trust deficit. देखिए, जिस जगह पे क्या हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो, मतलब लोगों को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है. If there is trust deficit, it actually leads to the collapse of the society, right? If you want any society to what continue to survive, you must ensure कि उस सोसाइटी में क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है. वो कब आएगा? when there would be faithfulness, when there would be the moral attitude of fidelity. That is why this is very very important for any civilization or society to survive. इसी तरीके से एक और important, yes, which needs to be discussed here is selflessness. What is selflessness? मतलब कि निस्वार्थता, राइट? फ्रॉम वेयर डू वी लर्न दिस सेल्फलेसनेस? सेल्फलेसनेस हम कहाँ से सीखते हैं? द बेस्ट प्लेस टू लर्न सेल्फलेसनेस इज नथिंग बट नेचर. वी लर्न सेल्फलेसनेस फ्रॉम द ट्रीज, वी लर्न सेल्फलेसनेस फ्रॉम द रिवर्स, yes, from the mountains. They never do anything for themselves. उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, वो सब किसके लिए है? दूसरों के यूज़ के लिए है. तो नेचर इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉरल एटीट्यूड विच इज़ सेल्फलेसनेस. देखिए, यदि निस्वार्थता नहीं है तो अ सेल्फिश सोसाइटी, yes, tends to get exhausted at some point of time. yes, जैसे हम वैल्यू बेस्ड क्राइसिस फेस कर रहे हैं इन दिस टूडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. yes or no? तो ये जो हमने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिस्कस की, दीज आर नथिंग बट व्हाट? पहला भाई गुडनेस, विच इज़ नथिंग बट द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ गुडनेस. क्या है? वेदव्यास के टेलिस्मैन से हमने समझा. फिर दूसरा हमने देखा रेवरेंस और रिस्पेक्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमने इंपॉर्टेंट समझा लव एंड कंपैशन का. यस, तो व्हाट इज़ लव एंड कंपैशन? उसके बीच का हमने अंतर देखा. जो आपके नोन पीपल हैं उनके प्रति आपको प्रेम की भावना होगी, और जिनको आपको सर्विस देनी है, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनके प्रति आपको कैसी भावना होगी? ऑफ कंपैशन. यस, उसी तरीके से आगे यदि हम बढ़े तो इफ़ यू टॉक अबाउट एम्पैथी, तो एम्पैथी और सिंपैथी के बीच का हमने डिफरेंस समझा, एंड एम्पैथी को हमने रिलेट किया अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट से, विच इज़ नथिंग बट व्हाट? आदि शंकराचार्य फिलॉसफी. यस, तत्वमसी. इसका अर्थ क्या होता है तत्वमसी? दैट मस्ट बी यू ओनली. जिसे हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान, वही ये कॉन्सेप्ट है.
यस फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने देखा फेथफुलनेस एंड फिडिलिटी, अगर ये नहीं हो, ये पर्टिकुलर मॉरल एटीट्यूड नहीं हो तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है और ट्रस्ट डेफिसिट लीड्स टू व्हाट, कोलैप्स ऑफ अ सोसाइटी, राइट। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखा सेल्फलेसनेस, तो निस्वार्थता, जो हम कहाँ से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं। देखिए ये जितने मॉरल एटीट्यूड्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो क्या है, दे आर द कोर बेसिक मॉरल एटीट्यूड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल इतने ही मॉरल एटीट्यूड्स हैं, यस, बट दीज आर नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो आई होप कि द आइडिया ऑफ मॉरल एटीट्यूड्स इज क्लियर टू यू, यस, कि भाई मॉरल एटीट्यूड क्या होते हैं, तो एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन मॉरल इश्यूज एंड दे टेंड टूवर्ड्स व्हाट, राइटियसनेस। आपका contribution to the foundation of ethics in the society in which you live can be considered as your moral attitude, and your particular viewpoint on these two things, what is right and what should be done by a society and what is wrong which should be stopped by a society, उसी को हम क्या बोलते हैं, moral attitude of an individual बोलते हैं, right। इसके बाद नेक्स्ट यदि हमने देखा कि हमने मॉरल एटीट्यूड्स को प्लॉट किया अलग अलग और 6 बेसिक रिक्वायरमेंट मिनिमल मॉरल एटीट्यूड्स को देखा कि इतने यदि मॉरल एटीट्यूड्स किसी भी समाज के लोगों के अंदर हो तो कंटिन्यूएशन और सर्वाइवल बिकम्स वेरी वेरी इजी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वी सी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, दूसरा जो बाइफर्केशन है हम देखने वाले थे वो है पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। Now, what are political attitudes and why do we need to discuss this particular political attitudes? Yes, political attitudes are nothing but what, attitudes of people to the areas of public life. Attitudes of people towards the areas of public life. दूसरा भाई, what other can, how in what other way can be defined political attitude? Yes, approach towards political problems, an individual's approach towards what, political problems. यस, कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर, हाउ प्रायर दे आर टू यू, यस, उसी को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट योर पॉलिटिकल एटीट्यूड। यस, पॉलिटिकल एटीट्यूड का एग्जाम्पल देखे, यस, तो बेसिकली एनी इंडिविजुअल्स व्यूज ऑन नेशनलिज्म, राइट, कि उनके लिए राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है। दूसरा कि लिबरलिज्म, व्यूज ऑन लिबरलिज्म, इसी तरीके से कंजर्वेटिज्म एक्सेट्रा, कि वो कौन से टाइप के पॉलिटिकल लिबरलिज्म या पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म में बिलीव करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट देयर ओन पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब ये पॉलिटिकल एटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, yes, that we need to learn, that why are we studying these particular things, because it determines an individual's outlook in the political arena. yes, देखिए आउटलुक किसी भी इंडिविजुअल का डिटरमिन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसी से राइट वी become an aware citizen, yes, and our relationship with the government, with the nation can be, with the state can be defined, right। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम देखें कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स डू सर्टन थिंग्स, दे डिटरमिन एंड इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स व्हाट डू दे डू, दे डिटरमिन and influence, they determine and influence the functioning of a political system, the functioning of a political system, कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा। दे डिफाइन द रिलेशनशिप, define the relationship between state and citizens, yes or no, which is very very important. yes,
कि कितना हम ट्रस्ट करते हैं अपने स्टेट की आइडेंटिटी को। फिर दे डिटरमिन द वोटिंग बिहेवियर, कि हम किस आधार पे वोट करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि हमारा गवर्नमेंट के साथ, हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हमारा किस टाइप का रिलेशनशिप है, वो किससे डिटरमिन होता है कि हम कौन से आधार पे या कौन से बेसिस पे वी आर वोटिंग। तो दे डिटरमिन द वोटिंग बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल। दे काइंड ऑफ एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज द फंक्शनिंग of political parties. Yes, and last but not the least, they ensure कि regular conduct of elections हो रहा है या नहीं, regular conduct of elections। इसके अंदर हम एक important चीज डिस्कस करेंगे which is inner party democracy। ये क्या होता है, लेट अस डिस्कस इट। यस, देखिए पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या करते हैं, वाई आर दे इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली डूइंग all these things. They determine and influence the functioning of the political system. They define the relationship between state and citizens. Yes, they determine the voting behavior, very very important. Analyze the functioning of political parties, कि किस तरीके से हमारी political parties function कर रही है, हम उन्हें कितनी हद तक क्या चीज़ें करने दे सकते हैं। यस, देखिए जब भी हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, उनको अथॉरिटी तभी मिलती है व्हेन वी एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी, yes or no? तो it depends on how you analyze the functioning of that particular political party. Then next if you see regular conduct of elections, देखिए regular conduct of elections ensure करने के लिए तो हमने एक कमीशन रख लिया, right? But what about the inner party democracy? If the parties themselves, yes, वो खुद पीड़ित है किससे, नेपोटिज्म से, फेवरेटिज्म से, yes, भाई भतीजावाद से, फेवरेटिज्म से, तो क्या होगा, देयर वुड बी, जब उनके खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, हाउ कैन दे बिकम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर नेशन। यस, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, अब ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स हैं, ये पर्टिकुलरली 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। वी वुड बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। Political attitudes are influenced by these 3 particular things. सबसे पहला इसमें है इमोशंस, यस, दूसरा वैल्यूज और आइडियोलॉजीज, एंड तीसरा है कॉग्निशन और रैशनैलिटी। अब ये सारी चीजें क्या है, लेट अस फिगर आउट। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का वोटिंग बिहेवियर जो है वो डिटरमिन होता है यदि इमोशंस से, हम भूल जाए कि उस पार्टी ने, उस पर्टिकुलर वर्ग ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, बट वी आर हाईली व्हाट गाइडेड बाय द इमोशंस, तो क्या हो सकता है, this can be considered as backward। यदि इस तरीके का, इस पर्टिकुलर फैक्टर से यदि हमारा वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड 100% व्हाट, बैकवर्ड। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग ऑन दीज बेसिस। यदि दूसरा वो किससे इम्पैक्ट हो सकता है कि वैल्यूज या आइडियोलॉजीज जिसके ऊपर आप किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, यू डू नॉट वोट द फेसेस ऑफ दैट पार्टीज, बट यू वोट फॉर व्हाट, इन व्हाट वैल्यू सिस्टम डू दे बिलीव, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। जैसे कोई पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से, यस, या पॉलिटिकल पार्टी से थिंग्स कैन बी एक्सपेक्टेड। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था पिछले में भी कि आर्टिकल 370 का जो रिपीलेशन किया, मतलब स्पेशल स्टेटस ऑफ व्हाट, Jammu and Kashmir was taken away, yes, so that was very much expected from BJP, yes. Why? Because they have that kind of strong value system or ideology that has the potential to bring changes, yes. वैसे ही यदि कोई भी सोसाइटी या नेशन किस बेस पे वोट करता है, ऑन कॉग्निशन, ऑन रैशनैलिटी, कि भाई व्हाट आर द पोटेंशियल चेंजेस दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी कैन मेक, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट वोटिंग बिहेवियर। पर
जैसे ही हमने ये तीनों डिस्कस किया, आपने देखा होगा कि भारत का जो वोटिंग बिहेवियर है इंडिया का, वो हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग है. यस, व्हाई? बिकॉज एज सिटीजन्स वी आर नॉट स्टिल मेच्योर इनफ. हम एजुकेटेड हो गए बट वी आर नॉट व्हाट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल दी थ्री. वेन इन मेच्योर डेमोक्रेसीज आप देखिए वो हमेशा रैशनैलिटी के बेसिस पे, कॉग्निशन के बेसिस पे वोट करते हैं. क्यों? some countries vote on the basis of ideologies and values. Yes, why? Because they are mature enough to understand the difference. Yes, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एकदम सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें दोनों साइड से क्या है, लैकिंग है. यस, नॉट ओनली फ्रॉम दी वन साइड. यस, इसी वजह से, इसी बेसिस पे क्या है कि यंग पीपल, यस, हु आर एथिकल इन देयर कंडक्ट, who are good people, they are not willing to pursue politics as an active career. Yes, तो यूपीएससी ने भाई 2017 में इसके ऊपर डायरेक्टली यही स्टेटमेंट देके प्रश्न भी पूछ लिया कि यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू टेक पॉलिटिक्स एज करियर, सजेस्ट वेज. यस, तो इसके वेज हमें सजेस्ट करने थे. तो क्यों ये? क्योंकि बेस लाइन में ये रीजंस हैं उसके, राइट. इसी तरीके से यदि आप देखेंगे कि आगे इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं, तो भाई पॉलिटिकल एटीट्यूड से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड हियर, जो इसमें से किसी भी पर्टिकुलर रूट वर्ड्स को बिलोंग करते हों, इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटिकल एटीट्यूड्स कैन कम, राइट. तो पॉलिटिकल एटीट्यूड्स अगेन इफ वी सी आर नथिंग बट व्हाट, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ पब्लिक लाइफ. Yes, an individual's approach towards what? Political problems. Yes, their views on nationalism, liberalism, conservatism. Yes, these all can be considered as what? Nothing but the political attitude which determine what? क्या तय करते हैं वो? The outlook of any individual towards the political arena. Yes, then इसके बाद हमने देखा कि if we see कि ये क्या क्या चीज़ करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड. सो दीज वर व्हाट दे डू, क्या इफेक्ट देते हैं, एंड देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि ये किन किन चीज़ों से कैसे होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो किन चीज़ों से इफेक्ट होता है. तो सबसे पहला उसमें देखा इमोशंस, फिर वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़ और कॉग्निशन एंड रैशनैलिटी. आज भी इमोशंस से इफेक्ट होता है. तो आज भी आप देखिए काफ़ी टाइम वोट करने के टाइम हम देखते हैं कि वो हमारे छोटे होमोजीनियस ग्रुप से क्या बिलोंग कर रहे हैं. इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंगिंग टू अवर कास्ट, बिलोंगिंग टू अवर रिलीजन, बिलोंगिंग टू द रीजन फ्रॉम वेयर वी कम, वी वोट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन विदाउट सीइंग व्हाट आइडियोलॉजीज दे आर पिचिंग. एंड हेंस व्हाट, कोएलिशन पार्टीज. कोएलिशन पार्टीज का इसी वजह से, तो क्योंकि हम अपनी इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, इस वजह से ही तो कोएलिशन पार्टीज का जो रोल, कोएलिशन गवर्नमेंट्स का जो रोल है वो 1990s के बाद बढ़ गया. यस और नो, राइट. बिकॉज 1990s में ही अगर आप इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए उसके बाद मटेरियलिस्टिक कल्चर स्टार्टेड डेवलपिंग इन इंडिया. यस, तो दैट गिव वे फॉर ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो चलिए, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स. येस, in the next session we shall discuss social influence and persuasion. Yes, thank you.